तो आज का रिएक्शन होगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड 12 और 13 पे। तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। つまりこれでウォールマリアの穴を塞ぐことが可能になる。いいぞ、やっとなエレン。巨人になるらしいな。そしてもう一つ यार पिछले एपिसोड का क्यों दिखा रहे हैं? 握るそれで瓶の中身は解明できそうなのか。それがどうも कंटेनर 骨髄液由来の成分ではあるようなのですが、 ह्यूमन こ बॉडी の液体 फ्लूइड। は空気に触れるものです。 ओ अच्छा, ये इंजेक्शन कैसे बना? としたら一体どうやって。 मतलब इंजेक्शन बाहर के किसी लोगों ने बनाया है। ならばエルヴィン、君か。いえ、 मतलब 私は兵士としては अभी 手を एक वीपन की तरह यूज करेंगे इंजेक्शन की この पावर 子は को। 最も生存確率の高い。 लिवाई को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। なぜそんなことを聞く。君に託すことになりそうだ。 मतलब ऐसी कोई सिचुएशन में 状況によっては कभी भी 誰 किसी に को 必要 टाइटन する बनाना か पड़ सकता है, अपने किसी 君が को। 決めることになる。わからない。叶えてみないことにはな。そうか、わかった。 यार एरविन के 了 ड्रीम्स 解だ。披露したいのだが考えてくれたか。まだ諦めておらんかったか。あのようなおぞましいもの民衆にさらしてみよう。やつめ。 नाइट ऑफ द बैटल ऑफ रिटेक द वॉल। グリシャ・イエーガーは壁の外から来た人間である可能性が高いと。 अरे हाँ यार, ग्रिशा येगर वॉल के बाहर से आया। アニやライナー、違うのは壁の中の人類に協力的だったってこと。 यार मेरे को नहीं लगता ग्रिशा इंसानियत का दुश्मन होगा राइनर के जैसे। それにしても ग्रिशा येगर 凄 रॉयल まじい फैमिली 意 को 識と ढूंढना 覚悟がなき था। ゃ捜査兵団に入りたいと言った10歳の息子に見せたかった。 मतलब 家の ग्रिशा 地 येगर 下 का 室 कुछ तो प्लान होगा। 言ってはいけなかったこと。いや、グリシャ・イエ एरविन ーガーが、つまり初代レース王が यार पहले किंग ने कौन सी मेमोरी हटाई थी सब 世 लोगों 界 में の से? 記憶決行する。 वॉल मारिया को वापस लेने 地下 जाएंगे 室には何があるのか 2 दिन में। 知りたければ見に行けばいい。それが調査兵団だろう。 यार ऐसे बहुत कम सीन है इसमें एरविन को स्माइल こ करते こに हुए は देखता ガキど हूँ। もに大人の会社どうする。ほっとけばいい。 और सेडीज あんなのに構 यार ってる。あんたの憧れだった you used to adore him। Oof। した後はどうする。何より防衛策の確率が先だと思うが、その後は脅威の排除だ。 Outside the walls there seems to be someone hoping Titans will eat us all। つに行った後に考えよ पहले बेसमेंट की चीज う。お前が निपटाएंगे। そこまで生きてるかわからねえから聞 Asking いてんだ。 because you might not live that long। その体はもう以前のようには動かせねえ。する。いや、 यार लिवाई भी चाहता है एरविन लड़ाई पे जाए। それでいいな。 हाँ पर एरविन अपने पापा के सपने के बारे में सोच रहा है। もうこれまで通り。私がダメならハンジ。ハンジがダメなら次だ。 अगर ये चल जाएगा तो हांजी आ जाएगी। ओह यार एरविन ऐसा मत बोल। はずだ。いいや違う。一番はこの और 作戦 best に option 全 is て for を me か to けること gamble に。 and おい all। おいおいおい、待て待て。両足の骨を折る。ちゃんと後でつながりやすいようにしばらくはベンジン लिवाई बिल्कुल नहीं चाहता है। लिवाई एरविन से बहुत 言うと यार मतलब एरविन पहले ही मरने वाला है। 兵士は現場を退になる瞬間には私が立ち会わなければならない。 हाँ それが絵の足より。あ एरविन अपने पेट उड़ाने को तैयार है पर あ、ああ。 मतलब एरविन इंसानियत की जीत से भी ज्यादा सच जानना चाहता है। お前の判断を信じ I よう。 will trust your judgment। くれぐれも民間人に悟られるなよ。兵器を養ってみせろ。肉？何これ？肉？ अरे साशा का मीट क्रश है। マジか。ちょっ इनको हर रोज मीट नहीं मिलता 取り है। 分けるんだよ。 ओह आज तो टाइटल बन गई है। コニー、早くサシャを。と動いてんだよ。おい、
そう騒ぐの。अरे तो वही वाइफू है पीले बाल वाली। साशा को दोहरे पड़ते हैं मीट खाने से। 固定法整備のあの日だよ。 मतलब पहले साशा सब लोगों को मीट खाने भी देती 食 थी। 料庫から土地を奪還すればまた牛も羊も買えますから。 消えた。 気の毒だとは思ったよ。 भाई यार おい。おい。あれからまだね。お前は एरन की स्माइल्स काफी कम रहती है। 当たり前だろ。俺はまだ弱いが、だからこそ前線で。一丁前に自己犠牲語って勇敢気取りか。 ये しかし वॉल्स के अंदर रहने वाले पुलिस वाले 全体を機能させることはできないだろう。 一番使えねえ मार लो मेरे को एक अलग ही 1にも2に लेवल も लगता 突 है 撃しかできねえ死に急ぎ野郎だよ。 वो एरन जैसा लगता है। हाँ そりゃ誰のことだ。 फू 普通なんだよな。そん आ な俺に言わせりゃ。じゃあ यार ये चीज देखना बहुत सेटिस्फाइंग है। अब मेन कैरेक्टर है जीन वो। Didn't have Titan power, you would be dead 10 times over. 旅にミカサに Every 助け time て you もら mother っ would て save your ass. ティモにベストキラー。お前こそ母ちゃん大事に Start しろ saving よ。 your mom so it's not そりゃ忘れろ。いいと思う。 देखा विकासा को भी समझ में आ गया। まずいぞ。 अरे विकासा ऐसे रे यार। はい。 मेन कैरेक्टर हो या कोई भी हो, लिवाय あ सबका と बाप 掃 है। 除しろ。なって思って見てたよ。ひでえ話だ。自分から仕掛けたくせに。手帳みてえな力がねえんだって。 एरन अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था। なんか見つけてそれをつなぎ合わせて大きな力に変えることが एरन でき सबको る。 साथ में लाके ताकतवर होने में विश्वास रखता। 人と人が違うのは यार आर्मिन पता नहीं ये माहौल बहुत वो में ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। 戻れるの。あの時に。 でも We will bring it 全 back. 部は帰ってこない。 Some ツケ things を are 払っても forever らわん changed. と。海だ。 The sea. 商人が一生ほどの巨大な潮の湖がある。 अरे यार 炎の水、氷の大 फेरी 地。 वाटर लैंड्स ऑफ वाइट सैंड स्नो। 砂の雪原。 वाह それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。 I joined the scouts so I could see all that. まだ疑っているんだろ。見てろよ。おー絶対あるんだから。 लार्विन सब लोगों को समुद्र के पास भेजना चाहता है। そりゃ実際見るしかねえ。 するんだから。 ओह वो सुन रहा था। और ये लोग वॉल मारिया को वापस ठीक करने जा रहे हैं। いよいよだな。 भाई एरविन भी चल रहा है। 頑張れ हाँ 町を救ってくれてありがとう。全員無事に帰ってきてくれよ。 यार पहली बार लोगों में उम्मीद दिख रही है। यार इस बार सिपाहियों में भी उम्मीद これだ है। け歓迎されるのはいつ以来だ。さてな、そんな時があったのか。 बिल्कुल। फिर भी कह सकते हैं कि सब लोग जिंदा वापस आ पाएंगे कि नहीं। यार जब भी कोई लड़ाई होती कोई ना कोई तो मरता ही है। ये बटूल ने तो कटिंग कर लिया। ओह अच्छा ये एपिसोड 12 है।
तो मैंने एक चीज़ सुनी है कि सीज़न 3 के एपिसोड 12 में के एंड में कुछ चीज़ दिखाते हैं मिस्टीरियस सी। ओह 自分で何をやっているのか分かっているの ये か क्या हो रहा है? Mikasa वर्सेस रिवाइव होगा। हाँ एरन ने शपथ ली थी। ある者は怒りを叫び出した。 ये सीन if Wall Maria was retaken. Episode 50 the town where everything began. तब एरन के घर जाएंगे। ちゃんと足元を照らせ。すいません。麓はまだか。夜が明けちまうぞ。 ये अंधेरे में भी खोजबीन कर रहे हैं इसको कहते हैं あなたもこ स्काउट्स। こで体力そう休んどけよエレン。バカ、名前で呼ぶな。そうだったすまん。周りは常に敵だらけだと思えって。ほっといてやろう。 एरन को अभी भी डर लगता है टाइटन से। こんな距離まで近づかって仮説が正しければだけど、 मतलब उनको सनलाइट लगती है टाइटन को चलने में। あの時と同じもない。 वो एक प्लान था पूरा का पूरा だったの यार। かもしれないからね。いつか捕獲できたらな。震えが एरन डर क्यों रहा है यार? なんだ何がそんなに怖いんだくそこんな調子でウォールマリア奪還に俺じゃダメなのかこんな奴がどうやって人類を救っているんだ Someone like me, how can I save こんな humanity? 奴がどうやって एरन को खुद पे ही विश्वास नहीं है। エレンどうしたの震えて。怖いの？怖くねえしサムエ आर्मिन एरन बराबर के हाइट में। 僕なんかずっ मिकासा と सबसे 震 ऊंची え है। らんないんだけど。ほら。と思ったことある。 एरन को टाइटन से डर लगता है कि 怖い नहीं? んだよ。僕なんか初めて巨人と対峙した時全く動けなくなったんだ。でも口から出してくれたんだ。なんで君はお前が俺に本を見せた時のことそれまで壁の外のことなんて空か雲を見て過ごしてたっけ एरन बचपन में बस आसमान को और बादलों को देखता था お前の話を聞くのに俺には何もなかった और एरन को सपना मिल गया आर्मिन की वजह से। माई फ्रीडम स्टोलन बाय दोस अनथिंकेबल पॉइंट्स। それが分かった時許せないと思った मतलब एरन को जब भी अपनी आज़ादी वापस लेने की बात आती है तो उसमें ताकत आ जाती है। ありがとな声がある。 आई रिकॉग्नाइज दिस एरिया। 確か薪を拾いに来たことが。 एपिसोड 1 में एरन मिकासा यहीं आए थे। あの日ここから逃げて以来 भाई एरन के घर वापस जा रहे हैं यार। 故郷に ये जगह तो पूरा वॉर जोन बन गया है। 陰に潜む巨人に警戒せよ。これより作戦を開始する。ここに移る。 मतलब एरविन के हाथ नहीं है फिर भी टाइटन से लड़ने जा रहा है और एनिमेशन अच्छी होती जा रही है। 内門と外門だ。これによって志願しなくを独立させ、敵はエレンを狙ってくるだろう。ここにいるのはフードで顔を隠した総員100名の兵士。 मतलब वॉल मारिया के आगे जो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जगह जहाँ एरन का घर था शिगनशिना वो दोनों वॉल बंद कर रहे の हैं। 後近くにベルトルトとライナーが भाई रुक जाओ मैं रेडी नहीं हूँ उनको देखने के लिए अभी। 全てを置いてきた एरन के लिए सब सोचना नेचुरल है। 大丈夫だ取り返してやるやっぱ
はりおかしいな。巨人が一匹もいないのは。 तो टाइटन रोकने नहीं आ रहा だが है। やるしかね作戦続行に支障なし。 We are free। एरन की सोच बदल रही है। यार एरन का ट्रांसफॉर्म देखने से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। थोड़ा और पावरफुल एरन है ये। इतनी शांति क्यों हो गई है सीजन 2 के एपिसोड 6 जैसे। でもやっぱりマントは持っていかれちまった。成功ですしっかり塞がってます。あの時の穴が。まだだ。奴らが健在ならライナーやベルト Until we kill Reiner, Bertolt and any other enemies, the operation to retake Volmaria won't end। 体がない。 हाँ इतनी शांति क्यों है यार। ここに来て一匹も巨人が見当たらない。やはり何者かが野営していた模様です。ポットは冷め切って地面に闘具が散乱していました。 कोई तो रहा है यहाँ ようなものを黒い液体を注いだ跡があるカップが3つ。 पे। 3 कप थे 3 人 मतलब が壁の上にいたよう पीले です。 वाल वाला भी। 三人だと。音や目視で気づいた हाँ उन्होंने देख लिया होगा वॉल के ऊपर से स्काउट्स को आते हुए। 使用直後のわけだしかし एक मिनट नहीं नहीं वो पहले से ही इनका इंतजार कर रहे 3 थे। 人以外の石膏が存在しと想定す मतलब べき और भी दुश्मन स्काउट्स में हो 今は敵 सकते の位 हैं। 置の特定を第一とする आर्मी その力が अलर्ट। 必要な時だ力が एरविन भी आर्विन पे विश्वास रखता है कि आर्विन सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला है। 兵を動かしこれよりアルミン・アルレルトの指示に You obey Armin alerts 捜索を続行せ command। よ यार बहुत अजीब लग रहा है ये चीज देखते हुए। 壁は隅々まで調べ上げたぞ。さあ指示をくれアルレルト。区内のお願いします。 सब लोगों ने टेंशन में उसके ऑर्डर्स माने। 全ては敵の思惑通りと मेरे को नहीं लगता राइनर बर्टोल इतने ज्यादा प्लान सोचने वाले हो सकते हैं। वो तीसरा वो पीले वाला बंदा चश्मे वाला उसने सोचे होंगे सब だけ प्लान। ではないからなでも出てこない。こんなに探してもまだ見つからまずい。いつも不利なのはいつだって。 ओ एक मिनट समझ में आ गया। アルレルト見つけたのか。敵はどこだ。まだです。 Inside the wall। 壁の中長い間入っていられなぜそれがわかる。勘です。お前今がどういう。巨人の力を使って僕たちを追い込んできました。誰でも思いつく常識の範疇に。 यही तो मेरे को एरविन की बात अच्छी लगती है। 勝利するためにここに来たのだ जीतने आए यहाँ पे। 再び二手に分かれ壁面の調査を。 यार मतलब इस बार स्काउट्स में ना अलग ही तरीके के लोगों ने। また何か考えが。 ओह भाई राइनर हत्यारा है यार। मास मर्डर। भाई यार 兵長。これも巨人の力かあと一歩 तो एरन इस बार जरा भी अजीब से एक्ट नहीं कर रहा है एकदम शांत है। 敵を捕捉し और यार ये पत्थर फेंकता है तो सब खत्म कर देता है ये। बाप रे 大崎来るぞ。セロ और ये म्यूजिक सीजन 1 वाला। 外したのか。馬が通れない程度にな भाई まず馬を狙い包囲する我々の退路を断ち और स्काउट भी उन सबको खत्म करना चाहते 人類と巨 हैं। 人ども ह्यूमैनिटी वर्सेस टाइटंस। どちらが死ぬか。 हाँ
मतलब एपिसोड 12 की शुरुआत में वो सीरम दिखाते हैं जिससे टाइटन बन सकते हैं। वो इंजेक्शन कैनी ने मरते हुए लीवाई को दिया था और लीवाई सब स्काउट्स के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहा था कि वॉल मारिया को वापस हथियाने की, उसके अंदर अगर कोई मरा, उस लड़ाई में अगर कोई मरा तो वो इंजेक्शन काम आ सकता है और किसी को टाइटन बना सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कौन जाएगा और कौन टाइटन बनेगा। जब सब लोग चल जाते हैं स्काउट्स लोग उस रूम में से और सिर्फ लीवाई और एरविन बचते हैं, तो एक तरीके से एरविन लीवाई को यही बता रहा था उस रूम में कि हमें कुछ भी हो जीतना ही पड़ेगा, वो वॉल मारिया वापस ठीक करनी पड़ेगी, वो मिशन पूरा होना चाहिए। लीवाई को एरविन की ये बात पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि एरविन का एक हाथ टूटा था और एरविन फिर भी मिशन अपना पूरा करना चाहता था। एरविन ने यही बोला कि मेरे को सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा ये मिशन पूरा होने के लिए, पर लीवाई ने यही उसकी बात काटते हुए बोला कि ऐसी फालतू बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। एक रूम में बैठ कर ही दिमाग चलाओ और फिर बाद में आराम से जोड़ भी दूंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, पर तुम इस रूम में ही बैठोगे, तुम लड़ाई पे नहीं जाओगे। और वो चीज़ देखने में मतलब बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब लीवाई को उस इंसान की परवाह है, एरविन की परवाह है, जिसकी वजह से लीवाई के बचपन के जो साथी थे वो दोनों मरे। मतलब लीवाई के मम्मी पापा ने तो उसको बचपन में छोड़ दिया था, तो बाकी बचपन से बड़े होने तक उसके जो साथी उसके साथ में रहे वो एरविन की वजह से मरे। फिर भी लीवाई एरविन को पसंद करता है और उसको इतना मानता है। ये चीज़ देखने में एक अलग ही लगा मेरे को। फिर एरविन ने बोला कि लीवाई तुम गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जाना ही पड़ेगा वो मिशन सक्सेसफुल होने के लिए। तो लीवाई ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा फिर भी सच्चाई जानने की ज़रूरत है तुम्हें। एरविन ने बोला हाँ, और लीवाई ने बोला अगर दुनिया ख़त्म होने की कगार पे आए फिर भी तुम्हें सच्चाई जानने की पड़ी रहेगी। एरविन ने बोला हाँ, और लीवाई उसके इस कॉन्फिडेंस है, उसकी इस कठोर और कुछ भी हो जाए अपना मिशन पूरा करने के इस ज़बरदस्त माइंडसेट वाले चीज़ को देखकर लीवाई छलक गया और लीवाई उससे अग्री कर, तुम्हारे जो भी डिसीजन होंगे, तुम्हारे जो भी फैसले होंगे, मुझे तुम पे विश्वास है। मतलब अपन सब ने लीवाई को किसी पे इतना भरोसा करते हुए या किसी को ऐसी बातें बोलते हुए कब देखा होगा। चीज़ लगती कि एरविन में कुछ तो बात है। वैसे तो कई टाइटन शिफ्टर जो लोगों ने उनसे तो कमज़ोर हैं, पर एरविन का दिमाग बहुत स्ट्रांग है और वो चीज़ से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। मतलब कैरेक्टर्स में अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स देखे उनके मुकाबले एरविन बेस्ट कैरेक्टर है अभी तक मेरे हिसाब से। और फिर एपिसोड 12 में आगे भी बताते हैं जब जीन और एरन लड़ते हैं। मतलब वो हमेशा की तरह लड़ रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद, एरन के इतने सारे दोस्त मरने के बाद, जीन जिस टीम में था उसकी टीम के भी इतने सारे लोग मरे। कुछ में जीन जिम्मेदार था, कुछ में एरन जिम्मेदार था। दोनों को पता था कि वो दोनों अपने दोस्तों की मौत के जिम्मेदार है। फिर भी इतना सब दुख होने के बाद भी वो नॉर्मली जब लड़ते हैं, वो चीज़ देखने में इतना जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका मतलब कोई लिमिट नहीं। मतलब वाह, ये शो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ें इस शो के लिए बहुत अनमोल है, बजाय कि बड़ी बड़ी चीज़ें। फिर एपिसोड 12 में थोड़ा और आगे जब आर्मिन, मिकासा और एरन नीचे वाली सीढ़ियों पे जाके बैठते हैं, वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। मतलब वहाँ पे पता चलता है कि एरन अब थोड़ा बदल रहा है। एरन अकेले चलने पे विश्वास नहीं रखता, अब एरन अब टीम के साथ चलने में विश्वास रखता है, टीम वर्क में विश्वास रखता है, सबको साथ में लेके सबके साथ काम करने में विश्वास रखता है। आर्मिन को लग रहा था कि एरन थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहा है या फिर सैडनेस में जा रहा है, इसलिए उसने ये चीज़ बोली होगी। इसलिए आर्मिन ने उन दोनों का बचपन का सपना बताया कि उनको बाहर, वॉल से बाहर जाके समुंदर देखना है, आसमान देखना है, बर्फ़ वाली जगह देखनी है और रेगिस्तान देखना है। और वो चीज़ भी काफ़ी हटके बोली आर्मिन ने, क्योंकि एरन का तो बस बचपन से सारे टाइटन्स को मारने का सपना था और वॉल्स के बाहर जाने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पर आर्मिन ने बताया कि वॉल्स के बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, वहाँ पे एक से एक ज़बरदस्त चीज़ें हैं देखने लायक। तब जाके एरन का सपना थोड़ा और ब्रॉड हुआ होगा। और एपिसोड 12 का एंड में कैसे भूल सकता हूँ। मतलब पहले तो वो एंडिंग जो सॉन्ग है वो मस्त है, पर वो एंडिंग सॉन्ग में जब हिस्टोरिया भागती है और अचानक से सीन कट होता है, मतलब कितना कुछ दिखाया है उस सीन में यार। ओह, इस शो में कई ऐसे राज हैं जो अभी खुलना बाकी हैं और मेरे को लगता है अभी जब तक इस शो एंड नहीं हो जाता तब तक ये सब नहीं खुलने वाले हैं कुछ भी। फिर आगे एपिसोड 13 पर आए तो उसके अंदर जब एरन, आर्मिन और सब लोग वॉल मारिया तक पहुंचते हैं रात को, और बीच रास्ते में जब एरन कपकपाता है कि उसे टाइटन से लड़ना पड़ेगा वापस, या फिर टाइटन का वापस सामना करना पड़ेगा, वो देखता है आर्मिन भी कपकपा रहा है, उसके भी हाथ कपकपा रहे हैं एरन की तरह।
पर आर्मिन बोलता है कि तुम कैसे डर सकते हो, तुम तो वही इंसान हो जिसने मुझे एक बूढ़े दाढ़ी वाले टाइटन के मुंह में से बचाया था अपनी जान जोखिम डाल के, और तुम अंदर भी चले गए थे। तो एरन ने तब जो बात बोली वो इतनी कमाल की थी, मतलब वाह। एरन बचपन में जब घास में लेटा रहता था और उसके सामने ऊंची दीवार रहती थी, वॉल्स रहती थी, तो वो यही सोचता था कि वो वॉल्स क्यों है या फिर उसके बाहर भी कुछ हो सकता है क्या। और कहीं ना कहीं एरन के अंदर तब से ही फ्रीडम, आज़ादी वाली इच्छा थी, चाह थी, और वो बहुत स्ट्रांग थी, मतलब उसकी मम्मी के मरने से पहले। धीरे धीरे जैसे ही जिन लोगों ने भी उसकी आज़ादी को या उसकी फ्रीडम को छेड़ने की कोशिश करी, उनको एरन ने नहीं छोड़ा, भले वो कितना भी छोटा हो। फिर वही 5 चीज़ बता के एरन ने एक और चीज़ बोली, उसकी सारे डर खत्म हो जाते हैं, उसमें अपने आप ताकत आ जाती है जब भी अपनी आज़ादी लेने की बात आती है तो। और एरन के हाथ कपकपाना बंद हो जाते हैं वो फ्लैशलाइट को पकड़ते वक्त। वो सीन बहुत ज़बरदस्त था, मैं बता नहीं सकता कितना। वो फिर एपिसोड 13 में आगे जब आर्मिन पे एरविन सारी जिम्मेदारियां छोड़ देता है कि तुम ही पता लगाओ कि दुश्मन कहाँ है, और आर्मिन दिमाग लगा के, आर्मिन से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि आर्मिन पता लगा लेगा कि वॉल्स के अंदर भी लोग छुप सकते हैं, और एरविन को भी ये एक्सपेक्टेशन होगी आर्मिन से। एरविन बोलता भी आर्मिन को कि तुम इंसानियत के सबसे कमाल के हथियार हो। फिर जब वो 20 टाइटन, वो बंदर आता है, सब टाइटन्स को एक साथ लेके आ जाता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि जब सीजन 2 में 20 टाइटन सब टाइटन्स को लेके आया था तब सेंस बनता है, क्योंकि वो टाइटन्स कोनी की विलेज के लोगों थे और वो लोगों ही टाइटन बन के आए थे, तो टाइटन्स वहाँ से आए थे। पर इस बार तो जब वॉलमारिया तक पहुँच रहे थे स्काउट्स लोग, तब तो आसपास लोग भी नहीं थे। तो अगर लोग टाइटन बन के नहीं आए, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो टाइटन अचानक से इतने सारे कहाँ से आ गए। मेरे को लग रहा है वो 20 टाइटन, वो बंदर मास्टरमाइंड है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो लोग स्काउट्स के 5-10 मिनट बाद ही पहुँचे 20 टाइटन, वो सब कई घंटों पहले होंगे, वो सब स्काउट्स का इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें सब कुछ प्रिपेयर कर रहा होगा, और वो सब पूरे स्काउट्स को मारना चाहते हैं। और अब वो सीरम कब यूज़ करेंगे और इन टाइटन से लड़ेंगे और जीत भी पाएंगे क्या 20 टाइटन से स्काउट्स लोग। ये शो हाइप बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है।